Good morning, students. How are you all? I hope you all are doing well. As you all know, in our previous video, we have started with a new chapter of mathematics, that is chapter number 7, fractions. In today's video also, we are going to continue with the same chapter, that is chapter number 7. And our today's topic is types of fraction. So we are going to understand different types of fractions. First one is like fractions. What do you understand by like fractions? You have already understood in your previous classes. Let's have a look on it. Now, like fractions with same denominator are called like fractions. वो fractions जिनका denominator same होता है उनको हम क्या बोलते हैं? Like fractions. For example, 2/5, 3/5, 4/5, 6/5, etc. वो fractions जिनके denominator same रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? Like fractions. Now, opposite of like fraction is unlike fractions. Now, what are unlike fractions? Fractions with different denominator are called unlike fractions. वो fractions जिनका denominator different होता है उनको हम क्या बोलते हैं? Unlike fractions. For example, 1/6, 2/5, 4/7, 5/8, etc. यहाँ सबके denominator different है, इसीलिए कौन सा fraction है? Unlike fraction. यहाँ सबके denominator same थे, that's why they are like fractions. Now, moving on to the next subtype. Proper fractions. So what are proper fractions? Fractions in which numerator is less than denominator. वो fraction जिसमें numerator denominator से छोटा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? Proper fraction. For example, 7/15 या numerator छोटा है denominator से 1/10. ठीक है, वो fractions जिनमें numerator is less than denominator are called proper fractions. Now next, opposite of it, improper fraction. या numerator छोटा है. In improper fraction in which numerator is greater than, या तो वो बड़ा होगा और equal to the denominator, या denominator से बड़ा होगा या denominator के equal होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? Improper fraction. For example, 17/16 numerator is greater, 20/15 again greater. Clear? Greater भी हो सकता है और equal to भी हो सकता है. Now next, unit fractions. What are unit fractions? Fractions in which numerator is 1 is called unit fraction. वो fraction जिसका numerator हमेशा 1 रहता है उनको हम क्या बोलते हैं? Unit fraction. For example, 1/5, 1/10, etc. Clear? Now next, mixed fraction. Mixed means fractions with a combination of whole part and a fractional part is called mixed fraction. वो fraction जिसमें whole part भी हो और fractional part भी हो उसको हम क्या बोलते हैं? Mixed fraction. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1:2/5. इसको हम कैसे रीड करते हैं? 1:2/5. इसमें आपका फ्रैक्शन पार्ट कौन सा है? 2/5. ये फ्रैक्शन पार्ट हो गया और जो ये होता है ये आपका होल पार्ट होता है. ये कौन सा होता है? होल पार्ट. WP लिख रही हूँ मैं. और ये आपका हो जाता है फ्रैक्शनल पार्ट. ठीक है, क्लियर है? अब 7:5/11. दिस इज ऑल्सो मिक्स फ्रैक्शन. तो इसमें होल पार्ट हो गया 7 और 5/11 आपका फ्रैक्शनल पार्ट हो गया. क्लियर? लास्ट, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. व्हाट आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस? 2 or more fractions representing the same part of a whole. जब 2 या 2 से ज़्यादा फ्रैक्शन सेम पार्ट रिप्रेजेंट करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इक्विवल. फॉर एग्जाम्पल 1/2, 2/4. 2/4 को अगर दोनों 2 से डिवाइड होते हैं, अगर मैं दोनों को 2 से डिवाइड करूँ ऊपर नीचे तो 1/2 ही आ जाएगा. तो वो फ्रैक्शंस जो आपस में इक्वल होते हैं या एक ही होल को रिप्रेजेंट करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. तो हमने कितने टाइप के? 7 टाइप्स के फ्रैक्शन पढ़े. लाइक फ्रैक्शन सेम डिनोमिनेटर, अनलाइक फ्रैक्शंस डिफरेंट डिनोमिनेटर, प्रॉपर फ्रैक्शन न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन न्यूमरेटर ग्रेटर देन और इक्वल टू डिनोमिनेटर, unit fraction numerator is equal to 1, mixed fraction combination of whole part and a fractional part, equivalent fraction representing the same part of a whole. I hope types of fraction is clear to you. Now let's have a look on the example based on it. Classify the following as proper and improper fraction. यहाँ पे आपको 4 parts given है, आपको बताना है कि ये proper fraction है या improper. 13/7 numerator greater than, improper fraction. 7/30 numerator less हो गया, proper fraction. 22/10 again numerator greater, improper fraction. 11/15 numerator less, proper fraction.
I hope this example is clear to you. Write 4 improper fraction with denominator 5. हमें कोई भी 4 improper fraction लिखने हैं, लेकिन हमारी कंडीशन क्या है, डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, 5. अब डिनोमिनेटर 5 है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा होगा, तो हम 5 से बड़ा कोई भी न्यूमरेटर रख सकते हैं या 5 भी रख सकते हैं. तो 6/5, 12/5, 14/5, 23/5. 4 बताने थे, मैंने कोई भी 4 अपनी मर्जी से लिख दिया. न्यूमरेटर 14. अब फिक्स कर दिया कि न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, 14. इम्प्रॉपर चाहिए, इम्प्रॉपर में न्यूमरेटर ग्रेटर होता है या इक्वल होता है, तो दैट मीन्स अब मुझे डिनोमिनेटर छोटा रखना पड़ेगा. 14/11, 14/9, 14/8, 14/6. आई होप दीज 2 एग्जाम्पल्स आर क्लियर टू यू. नाउ नेक्स्ट, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एज मिक्स्ड फ्रैक्शंस. हमेशा याद रखना, हमेशा हम इम्प्रॉपर को ही मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, कभी भी प्रॉपर फ्रैक्शन को कन्वर्ट नहीं कर सकते. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर हमारा ग्रेटर होता है डिनोमिनेटर से. अब मुझे 27/5 को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, मतलब मुझे उसमें होल पार्ट भी चाहिए और फ्रैक्शनल पार्ट भी चाहिए. तो जब भी मुझे कन्वर्ट करने के लिए आएगा मिक्स फ्रैक्शन में, तो 27/5, तो सबसे पहले मैं 27 न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दूंगी. 27 को 5 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आ गया 2, यहाँ पे आ गया. अब यहाँ पे राइट साइड में देखो, मैंने ब्लैक पेन से स्टार बना के लिखा हुआ है, मिक्स्ड फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्वोशिएंट रिमाइंडर डिवाइजर. तो हम इस फॉर्म में बनाते हैं. तो क्वोशिएंट जो होता है वो हमारा होल पार्ट बन जाता है, रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर हमारा फ्रैक्शनल पार्ट बन जाता है. तो यहाँ क्वोशिएंट क्या है, 5, तो 5 आपका बन गया होल पार्ट, 2 आपका न्यूमरेटर एंड 5 इज योर डिनोमिनेटर. हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, 5:2/5. क्लियर. नाउ इसी का नेक्स्ट पार्ट 122/71. हमने 122 को 71 से डिवाइड किया, तो 71 1 पे गया, रिमाइंडर आ गया 51, तो 1:51/71. क्लियर. आई होप इम्प्रॉपर को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आपको आ गया. ठीक है, इस पेज में सारे एग्जाम्पल्स क्लियर है सबको. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल. एक्सप्रेस द फॉलोइंग मिक्स्ड फ्रैक्शन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस. अब मुझे मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर, अभी हमने क्या किया था, इम्प्रॉपर को मिक्स में किया था, अब हम इसका डिफरेंट केस कर रहे हैं, मिक्स को इम्प्रॉपर में कर रहे हैं. तो इसको हम कैसे करेंगे, फॉर एग्जाम्पल 7:3/5 है. हम क्या करेंगे, न्यू डिनोमिनेटर को होल पार्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट स्टेप. तो 5 × 7, जो भी उसमें आएगा उसका प्रोडक्ट, उसमें न्यूमरेटर ऐड कर देंगे. तो जो आएगा वो आपका बन जाएगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विल बिकम 5 ओनली. ठीक है, पहला स्टेप 5 × 7 35 प्लस 3 38. तो आपका न्यूमरेटर हो गया 38 एंड डिनोमिनेटर एज इट इज. 3:2/13. 13 × 3 प्लस 2. 13 × 3 is 39 plus 2/13. 41/13. I hope this example is clear to you. Now write proper fractions of which numerator is 3 and denominator is 4. मैंने यहाँ पे दोबारा रिमाइंडर के लिए लिख दिया, प्रॉपर फ्रैक्शन इज इक्वल टू न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर क्या है आपका 3, डिनोमिनेटर क्या है 4, तो फ्रैक्शन क्या हो गया 3/4. न्यूमरेटर इज 2 एंड डिनोमिनेटर इज 3 मोर देन द न्यूमरेटर. न्यूमरेटर क्या है 2 और डिनोमिनेटर वो क्या बोल रहे हैं 3 मोर देन. मोर देन में हम क्या करेंगे, प्लस 3 प्लस न्यूमरेटर कितना 2, तो डिनोमिनेटर क्या हो गया 2/3 प्लस 2 विच इज 2/5. अगर लेस होता तो हम क्या करते हैं, माइनस करते. क्लियर. सी पार्ट बहुत ध्यान से समझेंगे. द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज 15. राइट 4 सच फ्रैक्शंस. हाउ मेनी सच फ्रैक्शंस आर पॉसिबल. वो बोल रहे हैं कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम 15 रहना चाहिए. हमें ऐसे 4 फ्रैक्शंस लिखने हैं प्रॉपर, और ऐसे कितने फ्रैक्शंस हम और लिख सकते हैं. तो एक 0/15, 0 + 15 15 ही रहता है. 1 0 से स्टार्ट किया, 1/14, 1 और 14 का सम भी 15, 2/13. ऐसे करते करते हम कितने फ्रैक्शंस लिख सकते हैं. हमें सम चाहिए न्यूमरेटर, इन दोनों को प्लस करें तो 15 आ जाए. 15 पेयर्स पॉसिबल, तो देयर 15 सच फ्रैक्शंस. हमसे उन्होंने 4 बोले थे तो हमने अपनी मर्जी से कोई भी 4 लिख दिए. अब 0/15 है, 15/0 नॉट पॉसिबल है. हमेशा याद रखना कि डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं आ सकता. हमेशा याद रखना डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता. क्लियर. क्लियर दिस एग्जाम्पल. नाउ राइट द फॉलोइंग एज मिक्स्ड फ्रैक्शंस. अब मुझे इसको कैसे लिखना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है.
₹15,27। अब देखो यहाँ पे दो डिफरेंट यूनिट है, तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो रुपीस हमेशा हायर यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, तो रुपीस हायर यूनिट है, तो हम इस पैसे को रुपीस में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। तो 1 पैसे में कितने रुपीस हो जाएंगे? 1/100 रुपीस। ठीक है, तो 27 पैसे में कितने हो जाएंगे? 27/100। अब देखो ये बन गया हमारे पास, ये फ्रैक्शन बन गया 27/100। तो 15 रुपीज़ 27 पैसे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? होल पार्ट, और ये बन गया हमारा फ्रैक्शनल पार्ट। हमने सिंपली क्या किया है, हमें इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था। दो डिफरेंट यूनिट थी, तो सबसे पहले हमने उसको सिंगल यूनिट में कन्वर्ट किया, और वो हम कैसे करेंगे? हायर यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। रुपीज़ और पैसे में हायर यूनिट क्या है? रुपीज़ है। तो 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 1 पैसे में कितने रुपीज़ हो जाएंगे? इधर जाएगा डिवाइड, 1/100। 1 पैसे में 1/100 रुपीज़ है, तो 27 पैसे में 27/100 हो गए। अब ये हमारा होल पार्ट 15 और 27/100, तो ये पूरा रुपीज़ हो गया। क्लियर? एक और पार्ट समझते हैं, आपको और क्लियर होगा। 2 वीक्स 3 डेज। अब वीक और डेज में कौन सा हायर यूनिट है? वीक्स। तो 1 वीक में पहले रिलेशन देखते हैं वीक और डे का। 1 वीक इज इक्वल टू 7 डे। तो 1 डे में कितने वीक हो जाएंगे? 1/7 वीक। तो 3 डेज में कितने हो जाएंगे? 3/7 वीक। तो 2 वीक्स 3 डेज में क्या हो जाएगा? 2:3/7 वीक्स। 2:3/7 वीक्स। ठीक है, हमने इसको वीक्स में कन्वर्ट कर दिया। आई होप इट्स क्लियर टू यू नाउ। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में ही बताया था व्हाट आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। 2 और मोर फ्रैक्शंस रिप्रेजेंटिंग द सेम पार्ट ऑफ अ होल। जब 2 या 2 से ज़्यादा फ्रैक्शन एक सेम पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे 1/2, 2/4। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं? आपको 2 फ्रैक्शन दे दें और पूछें कि क्या वो इक्विवेलेंट है या नहीं, ये भी पूछ सकते हैं। या वो आपको बोल सकते हैं कि फाइंड 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो हम हर टाइप का क्वेश्चन अभी समझेंगे कैसे करना है। नोट, टू फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ध्यान से समझेंगे। टू फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ अ गिवन फ्रैक्शन, किसी गिवन फ्रैक्शन का अगर मुझे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है, मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन विद द सेम होल नंबर। हम क्या करेंगे? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, क्लियर होगा। राइट 4 फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट टू द फ्रैक्शन 3/2। मुझे इस फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट 4 फ्रैक्शंस चाहिए। कितने चाहिए? 4। तो रीड करते हैं। टू फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ अ गिवन फ्रैक्शन, मेरे पास गिवन फ्रैक्शन 3/2 है। मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन विद द सेम होल नंबर। हम ऊपर नीचे सेम होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। बस ये ध्यान रखना, हम 1 से स्टार्ट नहीं करेंगे, 2 से करेंगे, बिकॉज 1 से करेंगे तो यही नंबर आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने 2 से स्टार्ट किया। 3/2 इंटू 2/2, 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 2 4। तो पहला फ्रैक्शन आ गया। अब किससे करेंगे? 3 से। 3 इंटू 3 9, 2 इंटू 3 6। तो नेक्स्ट फ्रैक्शन 9/6 आ गया। फिर 4 से करेंगे। 3 इंटू 4 12, 2 इंटू 4 8, 12/8 आ गया। अब 5 से करेंगे। 3 इंटू 5 15, 2 इंटू 5 10। 4 बोले थे तो 4 निकाल दिए, ज़्यादा बोलेंगे तो ऐसे मल्टीप्लाई करके वी विल फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो 4 फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट टू 3/5 आर 6/4, 9/6, 12/8, 15/10. Clear? I hope this example is clear to you. Now, fill in the blank to make the following statement true statement. मुझे इस blank को fill करना है ताकि ये statement true हो। 3/4 is equal to 15 upon box. मुझे इस box में value fill करनी है। क्या करनी है? value fill करनी है। अब 3/4 में इसमें क्या value है कि ये आपस में equal हो जाए। अब देखो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये दोनों आमने सामने के गिवन है, पहले इनका रिलेशन देखते हैं। 3 और 15 का कोई रिलेशन है? वी नो दैट 3 इंटू 5 इज 15। 3 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या आएगा? 15। अब देखो ये क्या है? इक्वल है ना। दैट मीन्स अगर मैं ऊपर 5 से कर रही हूँ तभी 15 आ रहा है। तो जब ऊपर 5 से किया तो नीचे भी मुझे किससे करना पड़ेगा? 5 से ही करना पड़ेगा। ठीक है, 3 into 5, so we need to multiply both numerator and denominator by 5 to get an equivalent fraction. क्योंकि जब हमने 3 को 5 से किया तभी हमारे पास 15 आया था। तो जब ऊपर 5 से किया हुआ मल्टीप्लाई तो हम नीचे भी किससे करेंगे? 5 से।
तो 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15, 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 20, तो 3/4 इज इक्वल टू 15/20। क्लियर है? हमने सिर्फ रिलेशन फाइंड करना होता है कि किससे मल्टीप्लाई, जरूरी नहीं है मल्टीप्लाई कराओ, डिवाइड भी हो सकता है। तो सेम नंबर से जिससे ऊपर कर सॉल्व करके आ रहा है, सेम हम वही डिनोमिनेटर में भी ऑपरेशन लगाएंगे। न्यूमरेटर की भी फाइंड करने को आ सकता है, डिनोमिनेटर। जैसे नेक्स्ट पार्ट में आपको न्यूमरेटर फाइंड करना है। 2/7 इज इक्वल टू बॉक्स अपॉन 21। अब मुझे इस बॉक्स में वैल्यू फिल करनी है, तो अब इसका तो रिलेशन में निकाल नहीं सकती, बट 7 और 21 का रिलेशन निकाल सकती हूँ। नाउ क्विकली टेल मी व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन 7 एंड 21। 7 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 21 आ जाए? 7 इंटू 3 21, दैट मीन्स नीचे मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तभी 21 आ रहा है। अगर नीचे 3 से किया तो ऊपर भी मुझे किससे करना पड़ेगा? 3 से। सो वी नीड टू मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 3 टू गेट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। 7 into 3 is 21, 2 into 3 is 6. So our answer is 6/21. So 2/7 is equal to 6/21. तो अभी तक हमने सीखा how to find the equivalent fractions and how to fill in the blanks to complete the statement. Clear? Now to examine equivalence of fraction. अब हम सीखेंगे कि चेक करना कि whether the given fractions are equivalent or not. इसको हम कैसे चेक करेंगे? Two fractions are equivalent. दो fractions equivalent कब होंगे? Only if numerator of first, पहले fraction का numerator multiply by denominator of second fraction के denominator से multiply करें, will be equal to denominator of first into numerator of second. That means अगर मैं A/B, C और D की बात करती हूँ, ये equivalent कब होंगे? Numerator of first क्या है? A और डिनोमिनेटर ऑफ सेकेंड क्या है? डी। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दूं, AD देन इक्वल टू डिनोमिनेटर ऑफ फर्स्ट क्या है? B एंड न्यूमरेटर ऑफ सेकेंड क्या है? C, BC। इफ AD इज इक्वल टू BC तभी वो होंगे। क्लियर? समझ में आया? मैंने आपको ये ABCD के टर्म्स में भी समझा दिया ना। एग्जामिन विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अब मुझे बताना है कि क्या ये इक्विवेलेंट हैं या नहीं। 5/12, 10/24, हम वही इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। तो हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई में न्यूमरेटर ऑफ फर्स्ट क्या है? 5, डिनोमिनेटर ऑफ सेकेंड क्या है? 24। तो 5 इंटू 24 मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डिनोमिनेटर ऑफ फर्स्ट 12, न्यूमरेटर ऑफ सेकेंड 10, 12 इंटू 10 करेंगे। अगर दोनों का प्रोडक्ट सेम आता है तो दे आर इक्विवेलेंट, अदरवाइज दे आर नॉट इक्विवेलेंट। सो जस्ट लेट्स हैव अ लुक। सो 5/12, 10/24, वही मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया हुआ है। 5 इंटू 24 120, 12 इंटू 10 इज ऑल्सो 120। दोनों प्रोडक्ट सेम है, हेंस दिस इज इक्वल टू दिस, हेंस द फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। क्लियर? ना नेक्स्ट पार्ट 6/7, 14/12। तो 6 इंटू 12 करेंगे मल्टीप्लाई, विच कम्स आउट टू बी 72। 7 इंटू 14 करेंगे, विच कम्स आउट टू बी 98। दोनों प्रोडक्ट इक्वल नहीं है, एज 72 इज नॉट इक्वल टू 98, विच इम्प्लाइज दैट 6 इंटू 12 इज नॉट इक्वल टू 14 इंटू 7, हेंस they are not equal, hence the fractions are not equivalent. I hope you have understood how to find the equivalence of a fraction. Thank you.